Guys, welcome back to my channel. Here I am Pooja and today I am going to show you or tell you all about Manipal University, Jaipur, that is located in the outskirts in Jaipur. Basically, it is located in Bagru. It is a small village. So without any further delay, let's get started with the video. सो गाइज मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के कैंपस की बात करते हैं सबसे पहले. सो द कैंपस इज अराउंड 122 acres एंड इट इज़ क्वाइट बिग. एंड एक बार तुम्हें आदत हो गई घूमने की तो शायद तुम्हें ज़्यादा बड़ा ना लगे, बट अगर तुम एंटर करोगे, तुम पहली बार आओगे, मुझे भी बहुत बड़ा लगा था. एंड आई फील लाइक इट इज़ स्टिल बिग फॉर मी. पता है, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको छोटा लगता है, बट आई डोंट फील लाइक इट इज़ क्वाइट बिग कैंपस एंड यू can just enjoy and just roam around the university. It is very pretty and the pura campus is just covered with greenery, and that is a very good point about our university. Second, we will talk about the faculty. So if we talk about BTech, I am not a BTech student. If you guys don't know, I am from psychology, BA honors psychology, and I would say the faculty of psychology is really good. So if I talk about BTech students, I don't know much about their faculty, but I would say that कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग ऑन योर ओन. एंड पीपल थिंक कि टीचर तुम्हें नोट्स दे देगा और तुम्हें पढ़ के एग्जाम देना है, तो ऐसा नहीं होता किसी भी कोर्स में. ऑब्वियसली यू आर एंटरिंग योर कॉलेज लाइफ, सो यू शुड नो दैट यू शुड डू थिंग्स ऑन योर ओन, मेक नोट्स ऑन योर ओन. दे विल मेक यू स्टडी एंड मे बी समटाइम्स यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो आई थिंक फैकल्टी पे भी हमारी पढ़ाई डिपेंड करती है, बट आई थिंक college life is all about learning things on your own. I would say that if you will study regularly and ask your teachers about your subject, then you will be able to give your exams properly. So moving on to the fee. अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो बीटेक वालों का फी स्ट्रक्चर हो या किसी और कोर्स का फी स्ट्रक्चर हो, आई एड इट हियर एंड हियर. नहीं पता कि लोगों ने फीस बढ़ाई है या नहीं, बट आई विल एड दैट हियर सो दैट इट हेल्प्स यू टू नो हाउ मच फीस इज इट और how much it have been increased. So yes, next we talk about traveling. So guys, अगर तुम जयपुर में रहते हो मेन सिटी में, so you have a lot of cabs in different areas, तो तुम लोग वो प्रेफर कर सकते हो. बट आई लिव इन हॉस्टल, तो इतना मेरे को नहीं फील होता कि ट्रैवलिंग एंड ऑल. बाकी अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो एक बस है दैट गोज टू चांदपोल फ्रॉम द मणिपाल यूनिवर्सिटी बस स्टेशन. एंड वहाँ से वो काफ़ी स्टेशन जाती है. बाकी मुझे सबके नाम नहीं पता बिकॉज मुझे एक ही साल हुआ है एंड आई हैवंट ट्रैवल्ड मच, बट वो सिंधी कैंप एंड चांदपोल तक जाती है. सो यू कैन ट्रैवल इन इट वंस. If you want to travel to like Chandpol or explore the city, you can travel it first because उसका fare बहुत ही reasonable होता है. Like it is around 30 rupees and 20 rupees actually for girls, and as a student you can show your ID and get that 20 rupees ticket. So it's a well and good thing. And कभी कभी 30 भी हो जाता है and 40 for boys. I don't remember much, but it is very convenient. But सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बस में, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. और दूसरी चीज़, you can get your cabs around the hostel. There are a lot of cabs and autos that goes, but they charge a lot of fare. तो वो चीज़ तुम्हें चेक करनी पड़ेगी आके. और दूसरी चीज़, अगर तुम हॉस्टल में रहने वाले हो तो there is cab facility जिसको तुम बुक करके जा सकते हो to visit 2-3 places, and they will give you a fare for around 1500 or 1600 according to the places you are going to visit. एंड उसके अकॉर्डिंग तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हें क्या ठीक लगता है. सो दैट्स अ वेल एंड गुड थिंग. सो वी आर टॉकिंग अबाउट मणिपाल यूनिवर्सिटी, सो वी विल ऑब्वियसली टॉक अबाउट स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड क्लब्स. So if I talk about sports, then it is a really good option. If you are interested in any kind of sports, you can just go and participate and play, and there's a lot of people, but there are a lot of sports and there is a lot of variety in sports. You can just have so many sports here, तो तुम लोग उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो. एंड हमारा ग्राउंड भी बहुत सही है, एंड वी हैव सेपरेट बास्केटबॉल एंड फुटबॉल कोर्ट्स इन द लाइक कॉलेज एज वेल एज हॉस्टल का मैं अगर तुम्हें बताऊँ, पहली बात जो मैं हॉस्टल के रूम बताने वाली हूँ इज दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूम्स. फर्स्ट इज ट्रिपल ऑक्यूपेंसी. अब मुझे आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ट्रिपल ऑक्यूपेंसी मिलेगा या डबल ऑक्यूपेंसी. गाइस, दे हैव बिल्ड अप न्यू बिल्डिंग्स दिस टाइम, एंड हमने देखा उन्हें बनते हुए. अब तक वो 2 महीने अभी और हैं, तो वो बन ही जाएगी प्रॉपरली. एंड आई थिंक दे विल गिव यू डबल ऑक्यूपेंसी, अदरवाइज दे कैन गिव यू ट्रिपल ऑक्यूपेंसी अगर तुमने बिल्कुल सही टाइम पे अप्लाई नहीं किया तो. आई थिंक सो, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम पे अप्लाई किया था एंड मेरे आसपास के सब लोगों को ट्रिपल ऑक्यूपेंसी मिला है, एंड इवन बॉयज ब्लॉक में मिला है, क्योंकि हमारे टाइम पे बिल्कुल भी जगह नहीं थी हॉस्टल में. सो दैट्स टोटली फाइन. तुम लोग अप्लाई कर दो डबल ऑक्यूपेंसी के लिए, हो सकता है तुम्हें मिल जाए, एंड हो सकता है इन लोगों ने इस बार डबल ऑक्यूपेंसी और
सिंगल ऑक्यूपेंसी रखी हो। ऑल्सो सम ऑफ यू हैव आस्क्ड अबाउट सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम्स। तो सिंगल ऑक्यूपेंसी के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम्स मिल जाते हैं तुम्हें, और आई डोंट नो मच अबाउट इट बिकॉज आई हैवंट आस्क्ड देम अबाउट इट, एंड इफ आई हैव और इफ आई गेट एनी नॉलेज अबाउट सिंगल ऑक्यूपेंसी आई विल श्योरली शेयर, बिकॉज तुम लोग भी कह रहे हो कि तुम्हें किसी पर्सन के साथ नहीं रहना, मैं भी ऐसी थी गाइस, बट आई थिंक sometimes you have to live with someone else and sacrifice some things of yourself to live in your hostel. But yeah, okay, next we move on to the hostel fee. So guys, proper structure तो मुझे भी नहीं पता fee का, because my parents have paid it obviously, but I would say that the hostel fee, according to the fee, the facilities are really good. I would say the life inside GHS, The Manipal's hostel is really good. अब बहुत लोग बोलते हैं कि मेस का खाना, मेस का ये, मेस का वो, but I think they make really decent food. And तुम बाहर की मेसेज जाके देखो, they do not make proper food. At least they have पनीर in their पनीर की सब्जी and they literally make ऑल्टरनेट डेज पे ये लोग पनीर बनाते हो, तुम बहुत पनीर खाने को मिलेगा। मैं लिटरली बोर हो जाती थी पनीर खा के, बट इफ यू आर अ जिम बॉडी देन श्योरली यू वुड लव टू ईट पनीर और चिकन, बिकॉज ये लोग चिकन भी बनाते हैं जब पनीर बनता है, और समथिंग लाइक एग करी। ऑल्सो मैं तुम्हें बता दूं कि जो हॉस्टल है, जो मेस है, वो ग्राउंड फ्लोर पे वेज काउंटर होता है और फर्स्ट फ्लोर पे नॉन वेज काउंटर होता है। बट स्पेसिफिकली नॉन वेज काउंटर वो तब होता है जब नॉन वेज बना हो, और मोस्टली रात को ही नॉन वेज बनता है, और वो भी ऑल्टरनेट डेज पे बनता है। बाकी अगर तुम फर्स्ट फ्लोर पे भी लंच करना चाहो तो तुम कर सकते हो, क्योंकि लंच के टाइम पे कुछ नॉन वेज नहीं बनता। एंड या, नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर अबाउट इज कंप्लेंट्स। सो गाइज, सबसे पहले अगर तुम रूम्स में रह रहे हो तो ऑब्वियसली कोई ना कोई कंप्लेंट आएगी, कुछ चीज़ें खराब हो जाएंगी, या फिर यू नो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू गेट रिपेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जेट स्प्रे बहुत खराब होता था रूम में, तो यू कैन get it fixed. They don't charge money extra for it, and maybe they add it on something, or they have already added it in the amount you give for the hostel fee. But ये complaints जो होते हैं, you can add on your Space Basic app. Space Basic ये तब देते हैं जब तुम्हारा हॉस्टल में एंट्री हो जाती है, you log in that and you can put your complaints, whether it's a room cleaning complaint, रूम में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ चेंज करानी है, कोई कर्टन चेंज कराना है, या फिर कोई भी चीज़ है, शार कर्टन चेंज कराना है, शार कर्टन ऐड कराना है, कुछ ऐड कराना है, कुछ कमी है तुम्हारे रूम में, तो वो सब तुम कर सकते हो। उस ऐप में ऑप्शंस होते हैं। इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट ऐप ऑल्सो, जब तुम हॉस्टल जाओगे तो मुझे ज़रूर बताना, मैं वो भी शेयर कर दूंगी। देन वी टॉक अबाउट जिम। Guys, gym is quite good, but I would say it is a lot crowded, because there are a lot of people who have been doing gym, और especially न्यू ईयर के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बिकॉज सबके गोल्स होते हैं कि ओ विल ज्वाइन जिम एंड ऑल। बट सच बताऊँ तो दोनों टाइम की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सुबह भी और शाम को भी। सो टेक टाइम आउट एंड यू कैन ज्वाइन द जिम। ऑब्वियसली अगर तुम जिम लवर हो, जिम रैट हो, तो तुम ज़रूर जिम जाओगे। एंड आई वुड से कि अगर तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है, इवन फिजिकल हेल्थ ठीक रखनी है, तो जिम ज़रूर जाओ। अदरवाइज जॉगर्स पार्क तो है हमारा, तुम वहाँ पे घूम सकते हो। और अगर तुम्हें कपल से दिक्कत है तो गाइस मैं वो कुछ नहीं कर सकती, मेरे को नहीं है तो मैं घूम लेती हूँ। ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, बिकॉज बहुत बच्चे चिढ़ जाते हैं। बट वी आर गोना मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज फेस्टिवल्स एंड गर्ल्स सेफ्टी। बहुत लोगों ने ये चीज़ शेयर नहीं की होगी, बिकॉज आई एम अ गर्ल, आई शुड शेयर दैट। वी विल टॉक अबाउट फेस्टिवल्स। So there are a lot of celebrations in the hostel life. Like तुम साउथ इंडियन फेस्टिवल्स देख लो, तुम हिंदुइज्म के फेस्टिवल्स देख लो, तुम पंजाबियों के फेस्टिवल्स देख लो, सब सेलिब्रेशन होता है। Guys, I am a Punjabi, plus I believe in Hindu gods, obviously. So you know what? They celebrate Lohri, they celebrate Navratri, they have a Garba night. And I just can't explain that कितने सारे celebrations होते हैं. You will enjoy your hostel life. They have holy celebration. They put decorations during Christmas. There's a lot of things that I haven't shared and I will surely share in my second year. तो तुम लोग अपने सारे अच्छे से कपड़े लेकर आना, बहुत सारे celebrations होंगे. Enjoy your festivals and just have a good life. Okay, next we talk about. Okay, I forgot to talk about events and clubs. So if I talk about events in college. Then there is Oniros that happened this year in the starting. I think it happened in the end of February and it was a great experience. इस बार इन लोगों ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को बुलाया था and मोहित चौहान को बुलाया था, I think. Yes, मोहित चौहान and one more singer and I think a group of singers. I don't remember guys, मैं लिख दूंगी यहाँ पे अगर मेरे को याद आएगा तो. But this is an event जहाँ पे like you
had kind of a concert and it is really really good. I had a really good experience. अगर मेरे पास मिनी व्लॉग्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो तुम लोग देख लेना कि कैसा कैसा सेलिब्रेशन होता है. 3 व्लॉग्स, 3 दिन का सेलिब्रेशन था हमारा कि अलग अलग लोग आए थे 3 दिन. एंड वन डे आई डिडंट इवन वेंट फॉर द इवेंट बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. सो यस, क्लब्स. ओके, देर आर अ लॉट ऑफ क्लब्स गाइज. मुझे क्लब्स के बारे में पता भी नहीं है क्योंकि मैंने आज तक क्लब्स ज्वाइन नहीं किए. पहला साल कंप्लीट हो गया मेरा. आई हैवंट ज्वाइंड एनी क्लब इन माय फर्स्ट ईयर. आई थिंक आई शुड हैव ज्वाइंड, बट ठीक है गाइज, कोई रिग्रेट्स नहीं रहने चाहिए, अगली बार कर लेंगे. बट देर आर अ लॉट ऑफ क्लब्स. देर आर डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, स्पोर्ट्स क्लब और पर्टिकुलरली बीटेक कोर्सेज क्लब. फॉर एग्जाम्पल बीटेक में ना बहुत सारे कोर्सेज हैं और उसके अकॉर्डिंग क्लब्स हैं, तो तुम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर बीटेक स्टूडेंट. या सच बताओ, मुझे बीटेक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है लाइक रिलेटेड इन आवर college, but I have friends. If you want or if you have any question, you can ask in the comment section. ठीक है. Next we talk about the very important thing that nobody has talked about is girls' safety in Manipal University or either its hostel. Mainly I am talking about hostel because college में तुम दिन में रहते हो and I think it's a really safe place at the daytime. And if I talk about GHS and basically the hostel, then it is also a very safe place and आई थिंक हम लोग 11 बजे के बाद बाहर अलाउड नहीं है. आई थिंक नहीं, ऐसा ही है कि हम 11 बजे के बाद अपने ब्लॉक के बाहर नहीं निकल सकते. बट इफ़ यू बॉयज़ ब्लॉक में रहते थे तो हमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि हम बाहर भी निकल सके अपने ब्लॉक के. तो वो चीज़ की सेफ्टी ये लोग रखते हैं. एंड इन केस यू आर इन अनदर ब्लॉक बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड एंड तुम लेट हो गए अपने रूम में जाने में, तो तुम्हारे साथ एक आंटी जाएंगी जो वहाँ पे काम करते हैं, जो वहाँ पे बैठती हैं टू चेक एवरीथिंग, जो तुम्हें छोड़ कर आएंगी बिकॉज ऑफ द सेफ्टी पर्पसेस. बाकी सच बताऊँ तो इट्स अ रियली रियली सेफ प्लेस. बट एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी दैट व्हेन यू गेट आउट ऑफ GHS इट इज़ नॉट अ वेरी सेफ प्लेस. आई वुड से, मतलब ऐसा नहीं कि तुम निकल ना सको, बट आई वुड से ट्राई टू गेट आउट व्हेन देयर इज लाइट, लाइक when there is sun or there is light, because darkness में थोड़ा uncomfortable feel होगा because there are a lot of people around you and because GHS के अंदर तो safety है, they have on their rules, all their rules even for watchmen and everyone working there, but उसके बाहर कोई ऐसे rules नहीं है. तो please अपना safety का खुद ध्यान रखो. It is a very safe place for girls. You can come, you can live here peacefully. And guys, अगर हम बाहर वाले PGs की बात करें तो I don't feel it is very safe because वो area ही मुझे safe नहीं लगता. But yes, that's about Manipal University I think. And you have any questions related to anything, you can ask in the comment section. बाकी I would say that जब तक तुम ठीक हो यहाँ से, जब तक तुम अपना एम जानते हो इस यूनिवर्सिटी में आने का, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता और ना तुम बिगड़ोगे. तो रिमेंबर योर गोल्स एंड वर्क ऑन दैट मोर देन एनीथिंग एल्स. मैं ये नहीं कहती तुम दोस्त मत बनाओ, बट दोस्त अपने लिए खुद चूज करो क्या तुम्हें चाहिए. आई डोंट से डोंट गो एंड पार्टी अ लॉट, हैव फन, बट रिमेंबर what you are coming from, where you are coming from, what are your learnings and what your parents taught you. And yeah, that's it about it. Bye guys, have a nice day. Thank you for watching. I hope you like it. Bye.